मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है द अर्थ क्रस्ट। दिस इज पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप इन द प्रीवियस क्लासेस। इन फर्स्ट क्लास we discussed chapter 1, that is earth and the universe. In the first class we discussed two hypotheses. The one is nebula hypothesis and the second one is big bang hypothesis. Then solar system, about solar system, that how our solar system should look, and about some facts about related to solar system. Then evidence that our earth is sphere or not. By giving you 8 evidence, I proved that our earth is of spherical shape, or particularly saying that it's of geoid shape. Then we discussed two movements, that is rotation and revolution, then how day and night form, then earth revolution, dawn and twilight, then latitude and longitude, and how what is about standard time and time zone and international date line. We discussed up to here. Now in the second class, that is chapter 2, that is Earth's crust, I divided the Earth into a piece of cake and shown you the layer of the Earth. We are somewhere here. Then we divide rock into 3, that is igneous rock, metamorphic rock, and sedimentary rock. We discuss up to here. Then we talk about the types of mountain, and today we are going to talk about types of plateau. What is plateau? Suppose this is a piece of land, and this piece of land, this area is elevated for suppose x height. Then this related to the surrounding, this is elevated land, and we are calling this elevated land as a plateau. I have written this here. Plateau is an area of a raised land that is flat on the top. Plateau is often as themselves of no surrounding as plateau. National Geographic describes plateau as flat and elevated land that raise sharply above the surrounding area. वही कहा मैंने, क्या है कि सराउंडिंग एरिया से एक साफ हाइट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज नोन एज प्लेट्यू. यूजुअली प्लेट्यू आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा व्हिच इज लोकेटेड डीप इनसाइड द अर्थ पुशेस टुवर्ड द सरफेस एंड फेल टू ब्रेक थ्रू द क्रस्ट. क्या कह रहा है? अगर मान लो ये अर्थ है और अर्थ के अंदर मैंने बताया था कि मैग्मा होता है, ठीक है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, एक माउथ नहीं ढूंढ पाया जहाँ से वो बाहर निकल सके. तो क्या करता है कि इस पूरी एरिया को एलिवेट कर देता है और एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जो कि हम कह रहे हैं प्लेट्यू कह रहे हैं. और भी कई तरीके हैं बनाने के, वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट्यू में. एज अ रिजल्ट दिस मैग्मा एंड अप लिफ्टिंग अ लार्ज पीस ऑफ लैंड. वी आर कॉलिंग इट प्लेट्यू. कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज इंटर माउंटेन प्लेट्यू, देन पेड माउंटेन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू एंड डिसेक्टेड प्लेट्यू. इंटर माउंटेन प्लेट्यू में आप देख सकते हैं कि इंटर माउंटेन मतलब कि 2 माउंटेन्स होंगे और माउंटेन के बीच में जो प्लेट्यू बनता है, 2 माउंटेन के बीच में से कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू. पेडो प्लेट्यू मीन्स दोज प्लेट्यू विच आर फॉर्म्ड इन द फुट ऑफ द माउंटेन, वी आर कॉलिंग इट पेड माउंट प्लेट्यू. Continental plateau we are calling it if there is some continental drift and that pushes a continental plate in upward direction and raise that platform or raise a surface of the land, we are calling it continental plateau. Volcanic plateau, whenever because of magma or lava a plateau is formed, we are calling it volcanic plateau. Dissected plateau, we are calling it because of denudation agent, for example wind की वजह से हो जाए या फिर रिवर की वजह से हो जाए या फिर ETC मतलब किसी भी डेनुडेशन एजेंट के कारण जब इरोजन होता है एंड दैट रेज अ प्लेटफॉर्म, वी आर कॉलिंग इट डिसेक्टेड प्लेट्यू. फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटर माउंटेन प्लेट्यू. द प्लेट्यू विच आर बॉन्डिंग ऑफ द माउंटेन रेंजेस आर पार्टली और फुल्ली एनक्लोज बाय द इंटर माउंटेन प्लेट्यू. जैसे बताया मैंने, whenever we will find 2 mountains and in the middle of the mountain we are forming a raised platform, we are calling it intermountain plateau. Intermountain means between 2 mountains. इसका मतलब ही होता है कि between 2 mountains है. Intermountain plateau are the highest in the world. इन माउंटेन प्लेट्यू कौन से होते हैं? ये वो हैं जो कि हाईएस्ट हाइट होती है इनकी. They nearly are horizontal rock layer raised a very height, a very vertical movement of the earth. Example, the Tibetan plateau are the best example of this intermountain plateau. The second topic is, this is the diagram. You can see कि ये क्या है, ये 2 माउंटेन है, माउंटेन 1, माउंटेन 2, और यहाँ पे क्या है, रेस्ड प्लेटफॉर्म, दैट इज वी आर कॉलिंग इट इंटरमाउंटेन प्लेट्यू. मतलब इसका मतलब ये बिटवीन 2 माउंटेन्स. द सेकेंड वन इज पेड माउंट प्लेट्यूज.
इसका मतलब क्या है कि किसी भी माउंटेन के फुट्स पे जो प्लेट्यूज फॉर्म होती हैं उसे हम कह रहे हैं पेड माउंटेन प्लेट्यू. Plateaus which are situated at the foot of the mountain is called locked on one side by the plain or sea. Obviously क्या है, मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे एक प्लेट्यू है, माउंटेन के फुट पे प्लेट्यू है, तो उसका जो अदर साइड होगा वो यूजुअली सी होता है या ओशन होता है, जिसे हम कह रहे हैं पैड माउंट प्लेट्यू कह रहे हैं. याद रहेगा. पैड माउंट, जैसे कि मैंने वहाँ कहा था इंटर माउंटेन मतलब बिटवीन टू माउंटेन्स, यहाँ पैड माउंट मतलब होता है फुट ऑफ द माउंटेन. ठीक है, याद रहेगा. आगे बढ़े. दे आर कॉल्ड एज द प्लेट्यू ऑफ डेनुडेशन as the area once were high level mountain now been reduced by the foot level of the mountain by the various agent of the erosion. अब जब मैंने कहा कि ये फुट ऑफ द माउंटेन्स पे होता है, तो ऑब्वियसली जब बारिश होती होगी या कुछ भी होता होगा, यहाँ पे बहुत चांसेस है कि चीज़ें इरोड होती रहेंगी. इसीलिए प्लेट्यू ऑफ डेनुडेशन भी कहते हैं इसे, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है ना. अब मान लो यहाँ पानी यहाँ पे गिरता भी है तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आएगा और ये इरोड करने के चांसेस में होते हैं, तो इरोजन यहाँ पे ज़्यादा हो सकते चांसेस होते हैं. इसीलिए क्या कहते हैं इसे प्लेट्यू ऑफ डेनुडेशन भी कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है, मालवा प्लेट्यू. यहाँ मैंने लिखा हुआ है आपको, देखिए एक माउंटेन है, उसके फुट पे क्या है, प्लेट्यू है, और यहाँ देखिए सी या ओशियन के चांसेस होते हैं. नाउ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या है, दे आर फॉर्म्ड आइदर बाय द एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट और बाय द स्प्रेड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेसिक लावा. इसके कारण क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बनता है. दिस काइंड ऑफ प्लेट्यू आर shown and the abrupt elevated in an contact near by the lowland sea. सी के अराउंड होता है जब सी मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ से एलिवेटेड लैंड जो होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहते हैं, जिसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण कई बार फॉर्म होता है. ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू आर ऑल्सो नोन एज प्लेट्यू ऑफ एक्यूमुलेशन. इसे प्लेट्यू ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र. अगर आप देखना चाहें तो वो प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज का एग्जाम्पल है. यहाँ मैंने शो किया आपको, देखिए दोनों साइड सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, और कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं उनके कोलिजन्स के कारण या अपलिफ्टमेंट ऑफ अ कॉन्टिनेंटल प्लेट जो फॉर्म हो रहा है, दैट इज वी आर कॉलिंग इट कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. द फोर्थ वन इज वोल्केनिक प्लेट्यू. वोल्केनिक प्लेट्यू क्या सोचेंगे, वोल्केनिक प्लेट्यू इज अ प्लेट्यू प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी. वोल्केनिक एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल क्या मैंने कहा आपको, मान लो कोई वोल्केनो है, अर्थ सर्फेस से बाहर निकलना चाह रहा है लेकिन कोई माउथ नहीं ढूंढ पाया, तो इट विल फोर्स दिस पीस ऑफ लैंड टू बी अपलिफ्टेड. इसे हम प्लेट्यू कह रहे हैं. दो तरह के होते हैं, एक लावा प्लेट्यू होता है, एक होता है फ्यूरोक्लास्टिक वोल्केनिक प्लेट्यू. लावा प्लेट्यू आर फॉर्म्ड बाय हाईली फ्यूरोबासाल्टिक लावा ड्यूरिंग द न्यूमरस सक्सेशन ऑफ इरोजन एंड न्यूमरस वेंट गेट ओपन. फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको वोल्केनो का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. ये वोल्केनो है, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ टाइम क्या हो रहा है, यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है और क्या है, डिफरेंट वेंट्स बना रहा है. फॉर एग्जाम्पल पहला वेंट ये था, कुछ बार ये ब्लॉक हो गया, तो कुछ बार वेंट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से निकलने लगा लावा, फिर यहाँ से निकलने लगा. तो क्या न्यूक्लियर बहुत बार इरप्शन हो रहा है जिसके कारण डिफरेंट वेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, और इसके कारण जो प्लेट्यू फॉर्म होता है उसे लावा प्लेट्यू कहते हैं. Pyroclastic volcanic plateau are produced by the massive pyroclastic flow and they are underlain by the pyroclastic rocks. ये मैंने एग्जाम्पल दिखाया आपको. Now the last type is dissected plateau. Dissected plateau कौन से है, is a plateau area that have been severely eroded. वहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको अभी वोल्केनिक में, वहाँ पे कई बार वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं. यहाँ पे क्या हुआ, कई बार डेनुडेशन प्रोसेस हुआ है, कई बार इरोजन्स हुए हैं यहाँ पे, जिसके कारण से जो प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं उन्हें हम कह रहे हैं डिसेंडेड प्लेट्यू. डिसेंडेड प्लेट्यू आर डिस्टिंग्विशेबल बाय द ऑर्गेनिक माउंटेन बेल्ट्स, लैक ऑफ फोल्डिंग, मेटामॉर्फिक, एक्सटेंसिव फॉल्टिंग और मैग्नेटिक एक्टिविटी. यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी नहीं फॉर्म हो रही. यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मान लो पीस ऑफ लैंड है और एक पीस ऑफ लैंड इरोड करते करते मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ गया, दैट मेकिंग इट्स एलिवेटेड लैंड. कि जानते ही हो कि जब इरोड होंगे तो कहीं ना कहीं जगह डिपॉजिट होंगे, उसके कारण अगर फॉर्मेशन हो रहा है देन वी आर कॉलिंग इट डिसेक्टेड प्लेट्यू. ये एग्जांपल दिया मैंने. अब इन प्लेट्यूज की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होती है, दे आर एज अ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज ए पावर हाउस. जनरेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली कई प्लेट्यू जो होते हैं माउंटेन के फुट्स पे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं. ना द कूल क्लाइमेट होता है यहाँ का, एनिमल रियरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास.